A very good evening, everyone. Hope you're all doing fine. Good evening, Anupam. How are you doing? Good evening, good evening. Very well. So glad to have you on this platform. I'm Sakshi Rohra, once again meeting you today. And before we go ahead with our seventh day, I would like to introduce Anupam. Anupam Shakti, a multifaceted healer and empath dedicated to guiding individuals on a journey of personal growth and empowerment. As a purpose of life awareness coach, Anupam helps people discover their passions and realize their potential. Her expertise in communication skills allows her to teach impactful expression and effective techniques for better connections. Anupam integrates sound healing and conscious movement into her holistic approach, helping individuals attain a deeper sense of well being. She leads mindfulness meditation sessions to bring tranquility and connection to her clients' lives. Committed to mental health awareness, Anupam fosters open discussions and advocates for seeking support when needed. As a graphologist, she offers a unique perspective on understanding personalities through handwriting analysis. Through her work as a podcaster and teenagers counselor, Anupam shares meaningful insights and guides youth through life's challenges. As an NLP practitioner, she helps transform limiting beliefs and nurtures a mindset of success. Amazing profile, Anupam. We are so happy to have you on this platform. The stage is all yours. Thank you so much, Sakshi. So, as Sakshi has informed me earlier that there are not many participants being it Sunday, but it's okay. Ramesh ji, I'm really obliged to have you here. And Sakshi, you are such an amazing host. Then Rajesh, Pinky, I welcome you all for being here on this Sunday. So, my topic is this forgiveness and resilience. And before coming to that topic, as this is a small group, we can be much more interactive and share our opinion and learning for this forgiveness, which is such a huge term. क्योंकि याद है हम लोगों ने हिंदी में एक कविता पढ़ी थी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो कहना बड़ा आसान है कि जिसके पास विष हो वही क्षमा कर सकता है, जिसके पास शक्ति हो वही क्षमा कर सकता है। बट it's not what I have learned and what I have experienced, what I have seen in my life. It's not that कि जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास ताकत हो, बस उसको क्षमा की दरकार है, सिर्फ उसको क्षमा चाहिए। क्षमा हम सबको हर मोमेंट पे, चाहे हम वीक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वी नीड दिस फॉरगिवनेस। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें क्षमा दूसरों के लिए चाहिए। दूसरों ने जो हमें दुख दिए, तकलीफ दिए, कष्ट दिए, हमको सिर्फ उनको क्षमा करना है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें भी मौके दर मौके खुद को क्षमा करना होता है। सो फॉरगिवनेस इज लिटरली फॉर ईच वन ऑफ अस एट एवरी मोमेंट। यहाँ तक कि जो हम सिचुएशन की बात करते हैं, द पास्ट मोमेंट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो आए जाए, कभी कहा जाए, और वो हमारे दिमाग में इस तरह से घूमते रहते हैं जो कई बार हमें सिक बनाते हैं, स्ट्रेस्ड बनाते हैं, डिप्रेशन में ले जाते हैं, एंड वी आर नॉट इवन एबल टू रियलाइज दैट थिंग। तो मैं शुरुआत करने वाली थी एक एक्टिविटी से, क्योंकि मेरा वो ऐसा सोचना था कि कम से कम 10-15 लोग तो होंगे। बट even if we are 3, 4, 5 people, it's completely fine. Let's utilize this platform and try to be as interactive as we can, so that कि हम, मैं आपसे, रमेश जी, राजेश जी, साक्षी, पिंकी से कुछ सीख पाऊंगी, and you will be able to see from my own experience how I deal with forgiveness and how I really forgive everyone to be resilient in my own life. So rather going on anywhere else, I would just request to let me know आपके लिए क्षमा क्या है। क्योंकि मैंने 1-2 मिनट में पास्ट में आपको बताया कि क्षमा क्या हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, एक सिंपल स्टेटमेंट में। बट व्हाट डू यू थिंक क्षमा, दिस फॉरगिवनेस इज फॉर यू? रमेश जी, हम आपसे शुरुआत करें, आप कहेंगे। मैंने देखा है, मैं किसी को क्षमा कहकर नहीं क्षमा करता हूँ, लेकिन मन में नहीं रखता हूँ। जी। जो कुछ है मन में रखता नहीं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता हूँ कि मैंने आपको माफ कर दिया।
जब जरूरत पड़ती है माफी मांगने की तो माफी मांग लेता हूँ। जी, बहुत सही। आप कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी? क्षमा मेरे लिए है कि किसी भी इंटरेक्शन में अगर ऐसा कुछ होता है जिसको कि जो मेरे लिए मुझे इम्पैक्ट करता है एडवर्सली नेगेटिवली, तो मैं उसको कैसे हैंडल करता हूँ। तो जनरली मेरे साथ ऐसा है कि मैं दूसरों के लिए तो हैंडल कर लेता हूँ, फॉरगिव कर भी लेता हूँ, जब मुझे गलती रियलाइज होती है मैं मांग भी लेता हूँ। बट जो मेरी एक चैलेंज है कि अ, मेरी जो खुद की जो जर्नी रही है, लाइफ जर्नी, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ और नहीं करता हूँ। मतलब मेरे जो खुद से जो एक्सपेक्टेशन रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं फेल किया हूँ, और उस चीज के लिए मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया। कोशिश करता हूँ बट नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि मेरे केस में वो मेरे लिए ज्यादा इम्पैक्ट करता है। दूसरे लोगों को तो मैं हैंडल कर लेता हूँ। ये अलग बात है कि मेरी जो जर्नी रही है, तो अभी मेरी इंटरेक्शन लोगों के साथ भी बहुत लिमिटेड होती है। मतलब मेरी खुद की फैमिली नहीं है, सो ऑफिस में जितने देर मैं रहता हूँ उतने देर मेरा लोगों से इंटरेक्शन होता है, उसके बाद आई एम कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम पीपल। तो थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आपने इतने सादगी के साथ इतनी सुंदरता से बताया कि यस, यू टू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट। कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी कमजोरी को ही एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये मानते चलते हैं कि हो तो रहा है, मैं कर तो रहा हूँ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, एंड मैं इस बात पे थोड़ा विस्तार से बात करूंगी बाद में। तो अभी पिंकी जी से सुनते हैं, पिंकी जी क्या सोचती हैं फॉरगिवनेस के बारे में। Oh my God, I should say forgiveness is a superpower. It is, I mean, the initial stage when I had started forgiveness, it was not at all easy. But the moment it healed and the moment even I could forgive myself, it changed my world, I can say. Things started happening so much in my favor. It is like, oh my God, I was suffering for what? And we suffer. I mean, I was the person who was into 12 years of anxiety and panic attacks. हम्म। And that's why I said forgiveness is a superpower. It Right. has changed my world, That's what. especially forgiving our own selves. Right. Very true. And I agree completely. And that's the reason when Sakshi asked, what would you like to talk about? In the beginning, only I saw that and I said, this is the best topic. Yes. We can talk for long as we want. पर यहाँ हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में मैं रियली बहुत चीजों को छूना चाहती हूँ। और बाकी लोगों ने कैमरा ऑन किया, सो आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर रेडी टू शेयर और नॉट। साक्षी, विल यू बी शेयरिंग? सो फॉर मी फॉरगिवनेस इज, ठीक है, हम कुछ बातें याद रख लेते हैं, कुछ भूल जाते हैं, पर जब तक वो हमें पेन देती है, अगर उसकी थॉट अगर हमें स्ट्रेस दे रही है, तो मैंने अभी तक फॉरगिव नहीं किया है। मेरे हिसाब से जब तक वो इमोशन उससे अटैच्ड है, हाँ, आज शेयर करने के लिए शायद मैं आपको शेयर कर लूं कि मेरे साथ ये हुआ था, पर अगर वो शेयर करने में मुझे तकलीफ नहीं है तो मैंने फॉरगिव कर दिया है। और नहीं है तो वो फिर भी थोड़ा बहुत उसमें कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, अभी तक मुझे मेहनत करनी है। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल था कि मैंने किसी के साथ शेयर किया, जैसे समझो आप, पिंकी और मैं, हम तीनों क्लोज हैं, पर पिंकी ने अगर मुझे कुछ कह दिया और मैंने आपको आके कहा कि पिंकी ने मुझसे ये कहा और मुझे तकलीफ हुई, तो आपने कहा लेकिन पिंकी ने गलत क्या कहा। तो आप समझे, एक होता है कि पिंकी भी बोले कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अब थर्ड पर्सन ओपिनियन भी यही आता है कि उसने गलत क्या कहा। तो मैंने इमिजिएटली कह दिया, हाँ ठीक है, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, जो मैंने उसकी बात को सुन के अपने आप को इतना कष्ट दिया कि मेरे इतने साल बर्बाद हो गए और किसी को रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि वो चीज गलत है। तो गलत क्या है मेरा, मैंने वो डोर ओपन रखा है लोगों को आके मुझे हर्ट करने के लिए। तो वो बाउंड्रीज क्रिएट करना, वो एक दरवाजा बंद कर देना शायद उन चीजों के लिए कि अपने आप को तकलीफ ना दे। तो ये प्रोसेस है, तकलीफदायक है, पर एक बार जब हो जाता है तब अलग ही एक जिंदगी है। बहुत सही कहा आपने। सो
फॉरगिवनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है, जो कि पिंकी जी ने भी कहा, आप भी कह रहे हो, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मालूम है कि इनको कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉरगिवनेस काम कैसे करता है। तो उसका मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल देना चाहूंगी। आप में से जो भी एक वॉलंटियर मेरे साथ बनने के लिए तैयार हैं, बट वॉलंटियर वो बनने को तैयार होंगे जिनको मैं कुछ भी बोलूं, यू हैव टू टेक इट एज अ न्यूट्रल पर्सन। जैसे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं उसको कुछ भी बोलूं, कुछ भी बोल दो, लाइक यू आर वर्थलेस, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, मैं आपसे कुछ भी कह रही हूँ, यू आर टेकिंग इट एज अ न्यूट्रल। अगर आप रेडी हो तो जस्ट लेट मी नो, पिंकी जी, राजेश जी, पिंकी जी, तो ठीक है, मैं पिंकी जी आपके साथ करती हूँ। यू कैन नोटिस पिंकी जी फेस एंड ऑल्सो माई फेस। सो हियर पिंकी जी, मैं आपको ना एक कुछ भी बहुत बुरा कहने वाली हूँ अभी, और एक साथ क्या करूंगी, एक बार आपको बुरा कह रही हूँ एंड देन वन न्यूट्रल स्टेटमेंट, then again something that will offend you, and then one neutral statement, and we'll see the changes in you. Okay, so we are already in that state where you all can see कि यहाँ हम लोग नाटक ही कर रहे हैं, but we have to make it a little practical so that you'll be able to see the difference on the face. So Pinky ji, just close your eyes, close your eyes, and I know that you have never met Anupam earlier, but just imagine she is a very good friend of yours. She's there sitting in front of you, and you had a good fight right now with Anupam. And right now, you're very angry with her. You really don't want to be with her because she has hurt you. She has told something bad about you in front of your close friends, and she has tried to malign you in some way. So you came angrily in front of her, and you tell Anupam that, Anupam, why did you do that? I'm not going to stay with you any longer. And at that time, now, आंखें खोलिए और अब देखिए अनुपम जो आपसे कह रही है सही में आपके सामने कह रही है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। सो इट्स द रियल सिचुएशन फॉर यू राइट नाउ। पिंकी, व्हाट अ हॉरिबल पर्सन यू आर। आई कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। I can't. I feel ashamed of being with you. You know, you're just a worthless. You can never succeed in your life. You can't do anything in your life, you know. And even spending 1 second with you is a kind of such a big problem for me. So better you go wherever you want to. और मुझे जिससे जो बोलना है मैं बोलूंगी, वो मेरा मन है. What can you do? Look at the changes. Look at her facial texture. Maybe it was a drama, but the way she has taken, look at her color. आप facial color उनके देख सकते हैं. Her smile, which looks how what kind of it is. Now she has come to neutrality again, but कितना भी वो neutral बनने की कोशिश कर रही थी, but the moment you listen to these things, it really become hurtful. तो जब भी कोई आपका बहुत करीब का इंसान है, जो आपके साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है, and they do something that you don't approve of, you don't like, you really feel sad, you really feel depressed, you really feel angry, and aren't they okay? किसी ने हमारे साथ ऐसा किया तो ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक तो रिएक्शन है, नी जर्क रिएक्शन. सो किसी ने ऐसा किया, दैट इज वेरी नेचुरल, वी विल बी इन दैट स्टेट. सो वी कांट से कि तुमने उसको क्षमा कर दो और सब सही हो जाएगा. इट्स नॉट अ मैजिक वॉन्ड. फॉरगिवनेस इज नेवर अ मैजिक वॉन्ड कि उसने आपके साथ कुछ कर दिया एंड यू आर लाइक, हाँ, आई फॉरगिव यू फॉर व्हाटएवर इट डिड, आई एम गोइंग टू बी ओके. It's a kind of phases in our own life, the way we recover ourselves. So first accept, जैसे हमारे grief के भी stages होते हैं. Grief के stages में जो पहला है that you keep on arguing that this is not the real thing. You keep on trying to feel that whatever has happened is just a kind of rumor, a mistake. So यही यहाँ पे भी ऐसा होता है. In the beginning you are in that denial mode where you don't accept it. The moment the acceptance comes, you are ready to work ahead with that. तो acceptance मतलब इसने ऐसा किया, मैंने accept किया, हाँ इसने बहुत बुरा किया. अब ये बुरा करने के बाद then the journey starts. Once you have accepted, then you have to really feel from within that whatever you are doing to yourself is ruining you. ये जो बोझ हम लेके चल रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, कैसे ऐसा हो सकता है, and how all these things you are feeling, आपको कुछ समय के बाद realize होगा कि whatever you are feeling is not impacting the other person in any manner. जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भीतर हो रहा है, आप फील कर रहे हो, आप बीमार होते जा रहे हो, आप उस चीज को इतना सोचते जा रहे हो, आप वो हैवीनेस फील कर रहे हो. And that's the reason we talk about forgiveness. It's not for others. So that's another myth where we feel कि हमने forgive कर दिया तो उसके लिए forgive किया. The forgiveness is for just myself.
I am forgiving, it is for me. I don't want to carry that baggage. I don't want to carry that headache. तो मैं अपने लिए फॉरगिव कर रही हूँ. तो ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है कि किसी को माफ कर दिया या कर दिया. ओके, नेक्स्ट, whenever we are reacting, as we shared already, जैसे मैंने कहा कि पिंकी जी उदास हो सकती हैं, मैं नाराज हो जाती हूँ, हो सकता है राजेश जी बिल्कुल चुप्पी में चले जाते हो सकता है रमेश जी, if you want to share you can share that how you react, because everyone reacts in a different way. और जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ लेसन फॉर यू टू गो अहेड विद योर फॉरगिवनेस जर्नी. तो अगर मैं आपसे पूछूं रमेश जी, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डेल्ट अ लॉट ऑफ लाइक एक्सपीरियंसेस विद लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, और उनके साथ आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा. तो हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू फाइंड दोस काइंड ऑफ कनिंग पीपल, क्रूअल पीपल that we claim of, the kind of people who are always there to backbite you? So how do you react to those kind of people? रमेश जी हैं क्या? रमेश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लोग ऐसे तो मिलते ही हैं लाइफ में. आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आप क्या करते हैं? कोशिश करके रिएक्ट ही नहीं करते. कुछ रिएक्ट नहीं करते? तो ये इनका तजुर्बा कह रहा है. तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जब हम उसको उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मैं भी हीलर हूँ, एनर्जी एक्सचेंज में बिलीव करती हूँ, तो एनर्जी जब एक्सचेंज नहीं होती तो वो नासूर बन जाता है. जिस घाव के लिए हम कुछ ना करें ना, तो अंदर ही अंदर जा करके नासूर बन जाता है. तो उस नासूर को, उस पे घाव को दवा लगाना, और वो दवा जो है बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू होता है. तो जो पहला टेक्निक्स है वो माइंडफुलनेस. अब माइंडफुलनेस में वर्ड पूछूं जो कि साइकोलॉजिकल टर्म है, अगर हम ऐसे देखें तो योगा के टर्म में उसी को मेडिटेशन कहते हैं, विपस्सना कहते हैं. तो ये माइंडफुलनेस जो है बेसिकली बीइंग इन द मोमेंट, असेसिंग दैट व्हाट इट इज एज इट इज. तो जैसा भी उसने किया, जो भी उसने किया, उसी तरीके से उसको देखना, दैट इज माइंडफुलनेस. तो बीइंग माइंडफुल अबाउट दैट इंडिविजुअल. अभी मान लीजिए एक ऐसा इंसिडेंट लेते हैं कि मैं किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करके उसको बिजनेस पार्टनर बना लिया. ओके, और बिजनेस पार्टनर बनाने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसका रिजल्ट आने का टाइम हुआ और सब कुछ बंटवारे होने का टाइम हुआ, वो पर्सन सब कुछ लेकर के निकल गया. नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय हैंड. इन दिस सिचुएशन व्हाट विल आई डू? हाउ विल फॉरगिवनेस हेल्प मी? Even in the case of the worst cases, when we talk about rape victims, when we talk about murders, when we talk about such kind of horrible crime, in that case, how forgiveness help? आप में से कोई इस बात पे बताना चाहेगा? कुछ भी अपने विचार. Okay, so I guess आप लोग सब thoughtful हो गए हो, because even I was, when I heard about this incident, in these things for the first time, why to forgive such kind of people? Why to think about जस्ट इवन अभी कसाब को फांसी मिल रही है तो हम क्यों कहें कि उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए, उसको और जीने देना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए. सो आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन विद दैट थॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. पर व्हेन आई लर्न होपोनोपोनो, आप में से कितने लोग होपोनोपोनो जानते हो? पिंकी जी जानती हैं, साक्षी, रमेश जी, राजेश जी, आप होपोनोपोनो ही नहीं जानते. मैं होपोनोपोनो का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पहले देती हूँ, बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो इज द काइंड ऑफ लाइट इन द डार्क वर्ल्ड ऑफ फॉरगिवनेस. सो जब हम होपोनोपोनो, एक डॉक्टर वेन, सॉरी आई फॉरगॉट हिज नेम, डॉक्टर वेन, हाँ, डॉक्टर वेन थे. इन्होंने होपोनोपोनो का रिसर्च, होपोनोपोनो एक्चुअली एक ट्राइबल में यूज होता था. जब भी इनके यहाँ कभी कुछ भी गड़बड़ होता था, दे यूज टू प्रे होपोनोपोनो. होपोनोपोनो इज बेसिकली 5 स्टेटमेंट्स. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई थैंक यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू. सो ये बेसिक 5 सेंटेंसेस का एक कलेक्शन है जिसको हम होपोनोपोनो बोलते हैं. तो ये डॉक्टर ए ह्यूलिन जो थे, ये ही यूज्ड टू क्लेम कि होपोनोपोनो कैन क्लेम ऑल द काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. किसी को भी रिकवर कर सकता है, किसी भी बीमारी को, किसी भी मेंटल स्टेट के जो ट्रॉमाज हैं उनको ये सही कर सकता है. सो पीपल रियली वांट टू टेस्ट. जब भी आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है तो हम हमेशा चाहते हैं कि और बताओ तुम कैसे कर सकते हो. तो उसको किसी ने चैलेंज किया कि एक प्रिजन था जिसमें 30 प्रिजनर्स थे, एंड दीज 30 प्रिजनर्स वर लाइक very extreme leveled violent criminals, जिनके
प्रिजन में किसी को जाने का हिम्मत ही नहीं होता था, उनको खाना भी फेंक के दिया जाता था, दैट काइंड ऑफ वायलेंट पीपल दे वर। तो उनसे कहा गया कि आप इनको ठीक करके बताओ कैसे कर सकते हो, इनको अगर माफ करना है, क्योंकि इनको तो हम बाहर नहीं छोड़ सकते, इनका सजा पूरा हो चुका है, दे गॉट दी whatever their punishment was, that was already done, but they couldn't be released because of their violent situation. तो ये ए ह्यूलन को जब बोला गया कि आप इसको करके बताइए, तो उन्होंने कहा आई डोंट इवन नो नीड टू गो टू देम, आप मुझे उनके फाइल दे दीजिए और मैं उनके फाइल के थ्रू जो मुझे करना है मैं कर दूंगा. He took all the 30 people, 30 prisoners file, and he started giving Ho'oponopono, just reciting Ho'oponopono for each of the prisoners. Within few years, they were released and that prison was closed. So that's a kind of story of A. Hulan. Then there are many other stories, और जो कि live example में अभी आपको just दिखाऊंगी भी थोड़ी देर में, जो अभी हमने पिंकी जी के साथ किया. Now we'll be doing it with each one of you. So if you can switch on your camera, क्योंकि छोटा सा ग्रुप है हमारा, 8 लोग हैं, तो इतने लोग भी अगर कैमरे में आते हैं, then you will be able to see the changes on your face. अब चेंजेस कहाँ पे आता है, अगर आप बिहेवियरल एनालिस्ट हो या फेस रीडर हो या फिर एनएलपी प्रैक्टिशनर हो, जहां भी, क्योंकि हम सब अगर कोचेज हैं, वी नो कि फेसियल कलर जो है वो हमारे इमोशंस के साथ चेंज हो जाता है, जो शेड हैं वो ज्यादा रहेंगे, जो झुर्रियां हैं वो ज्यादा रहेंगी, और अलग अलग जगह पे जैसे कहाँ पे रिंकल आना है, कहाँ एकदम स्टेबल होगा. सो दिस ऑल चेंजेस विद द चेंज इन आवर स्टेट. तो जब हम एंग्री हैं, कोई भी नेगेटिव अनहेल्दी इमोशन में क्या होता है, हमारा बॉडी एकदम स्टिफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, जो स्पार्कल है वो चला जाता है, कहते हैं ना चेहरे का रंग कहाँ उड़ गया, सो चेहरे का रंग चला जाता है. पर जब हम शांत होते हैं, जब अपने पीसफुल अवस्था में आते हैं, तो चेहरे में अपने आप एक ग्लो आ जाता है, और उस चमक के साथ हम, हमारे चेहरों में आप ज्यादा, जैसे मैं हंसूं और खुल के हंसूं, तो आप देखो कहाँ कहाँ पे आपको ये रिंकल्स नजर आएंगे, आंखों के पास, यहाँ यहाँ माथे में, हर जगह आपको वो प्रॉपर रिंकल नजर आएंगे, ये असली स्माइल है. पर अगर मैं फेक स्माइल करूं, तो फेक स्माइल में यू कैन सी जस्ट वन रिंकल विल बी देयर एंड दैट आल्सो वोंट बी अप्रोप्रिएट. तो वो डिफरेंस होता है फेस रीडिंग के लिए. अब वही चीज हम एक साथ करेंगे. आपको फिर से मैं सबको एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, जस्ट क्लोज योर आईज. Everyone, please close your eyes. We'll just do an activity which will help you to work on any one person who has troubled you the most, और जिसकी वजह से आप अपने स्टेट में अपना बेस्ट नहीं कर पाते, और ऐसा हो सकता है कि उस आदमी सामने आ जाए या इवन उसकी थॉट सामने आ जाए, देन यू फील एग्रेसिव, यू फील सैड, डिप्रेस्ड, जो भी नेगेटिव अनहेल्दी इमोशन है वो आपके अंदर हावी होने लगता है. सो जस्ट थिंक अबाउट एनी वन पर्सन. अगर कोई आपको ऐसा नहीं याद करना, कई बार ये होता है कि हम बहुत ज्यादा डीप इमोशन में चले जाते हैं, सो बेटर थिंक अबाउट कोई लाइट इंसान जिसने बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया हो, पर आप उससे परेशान हैं. ओके, so think about any one individual, any one person. Even you can think about a situation which has troubled you the most. Again, I am highlighting, please don't take a kind of traumatic situation which has troubled you a lot. क्योंकि आप अभी वो लोगे, उसका जो after effect होगा, we won't be able to see and not able to work on that. क्योंकि ये light moment है, we will be doing it within 5 or 10 minutes. So just think about that person or that incident who has troubled you in any way. See the situation playing in front of you. See the person doing the same thing which has hurt you at that time. As the rewind button, look at everything happening in front of you as it is, as it has happened. Now, whatever is happening, where you are feeling in your body, just locate that body part. See how your emotions are changing, what all you are able to feel at this moment. It might be just sadness, it might be anger, it might be any other feeling that you think is evoking right now. Let that come on your face. Let that be there for a moment. राजेश जी, आप अपने बारे में कर लीजिए. Whatever you were talking about, think about that moment, about yourself, wherever you felt more like pained about your own act or what you couldn't do. Now, breathe in
Exhale slowly and comfortably. Inhale deeply and fill your whole chest with the positive air. Exhale and release all the stress and the negative, unhealthy emotion, which is making you weaker, which is making you go into stress. Now, along with me, just recite this Ho'oponopono prayer. And as you are doing this Ho'oponopono prayer, just think about all the emotions with purity. I am sorry. So sorry for whatever has happened, because some way or the other, even I have contributed into it. My existence is one of the reasons that it happened. And I take that responsibility. I'm sorry. Please forgive me. I know I might be a trouble to you. I know I have disturbed you in some way. I have created problems to you. And that made you do that in whatever reason. Please forgive me. I thank you. I thank you for whatever you did, because you have taught a very important lesson of this life for which I am here. I'm really grateful to you for that. I love you. I love you because on energy level, we are connected. We belong to the same Brahma Tattva, the same universe, the same energy point. I trust you. I trust your existence, and I trust that whatever you have done to me is one of the greatest lessons I have taken this birth. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I trust you. See the positive energy from the universe pouring upon you, and you are bathing in that positive, constructive energy with more and more strength, more and more capability and possibility. You have already taken the lesson from that person, from that incident. See that energy getting circulated in each and every part of your body from top to toe, front and back,
left and right. Slowly and gently take your hands to your eyes, keep it on your eyes. Thank your eyes for seeing this life. Thank the Almighty for blessing you with this beautiful life that you could witness with your beautiful eyes. Now take your hands in front of your eyes. Look at the lines, which is your karma, which is the lines of your life, which is taking you forward every moment. ये हाथों की लकीरें आपके कर्मों की लकीरें हैं, जो जैसे कर्म करते जाते हैं उस अनुरूप ये बदलते जाते हैं. Now be honest and let me know, how has your feeling shifted from what it was earlier? Like if it was like in the beginning, the intense feeling of sadness, anger, or stress, depression was 8, if it has reduced to 5, 6 or not? Yes or no? राजेश जी, रमेश जी नहीं कह रहे हैं. कोई बात नहीं. कई बार क्या होता है कि हम चीजों को उस तरीके से नहीं देख पाते, हम क्वेश्चन माइंड में आ जाते हैं. और एक ये ह्यूलिन की जो मैंने बात की, उनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे लोग उस बात को कहते रहे. सो दैट्स द रीजन वी से यू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ, यू डू इट एंड सी द चेंज. So if I share my own story, I have also aspired to become a medical practitioner, but for some reason, whatever reason, there can be numerous excuses, but I couldn't be, and I couldn't fulfill the dream of my father at that time. And he was like, unki bari beti nahi ban pai doctor. And I was soon married. As I was married just after my 12th, I was considered as an uneducated girl because my husband was highly qualified, again, a very handsome man. So I was not treated as I should be, as I had always been considered as a genius girl and all these tags which I had in the school. So suddenly everything shattered and I was an uneducated girl. That was a big slap for me. Then I did my graduation, I did my master's, I did B.Ed, and then I did again a graduation in psychology. So I did master's in both English and psychology. And then I kept on learning all the kind of psychotherapies. I came into the field of healing. After the separation from my husband, then I lost my daughter who was 15-year-old just 2 years ago. So many things which happened, and I kept on learning every moment. Even that incident has been a kind of a learning point for me. And since then, I have become a kind of volunteer for teenagers. That's why I tell myself as teenagers consultant, because I have been dealing with teenagers for last 20 years. तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम अगर सतही तौर पे किसी को देखें तो वो सुपरफिशियल, हमें उतना ही समझ में आएगा जितना हमने आज तक लेके रखा है. बट व्हेन वी गेट डाइव डीपर इनटू इट, देन वी आर एबल टू सी कि कैसे ये काम करता है, किस तरीके से हमारे एक एक सेल को फिर से नया बनाता है, एंड वी आर एबल टू सी द थिंग्स डिफरेंटली. तो अभी अगर मैं दूसरी बात करूं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज माइंडफुलनेस मेडिटेशन, वेदर इट इज होपोनोपोनो, इट इज अफर्मेशन, और जिस भी तरह की मेडिटेशन, it helps us only when we understand that it is doing something to me. अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ कि एक आप ड्रेस खरीदने के लिए जाते हो और आप अगर हम मुंबई में हैं, हर जगह वो सड़क पे लोग लाइन लगा के बेचते रहते हैं, और अलग अलग मुंबई में कहते हैं ना, कुछ भी आपको कहीं भी मिल सकता है. सो सेम काइंड ऑफ ड्रेस यू कैन गेट इन 100, 200, 500 ऑन रोड. उसी तरीके का ड्रेस अगर आप प्रॉपर मॉल में जाओ, सेम पीस, सेम थिंग, एवरीथिंग सिमिलर, स्टिल यू विल गेट इट इन ग्रेटर प्राइस देन दैट. बट इफ यू नो द वैल्यू कि इतना होने के बाद भी, सब कुछ सेम दिखने के बाद भी क्या डिफरेंस है, you will choose what is preferable to you. You won't go for that 500 one, and you will definitely buy that because you know that when you are working or using it for long run, it won't be that much helpful. तो सुपरफिशियल लेवल पे जैसे हम लोग भी कुछ थेरेपीज ऐसे होते हैं, इवन एनएलपी में हम यूज करते हैं, जैसे मिररिंग है, क्ले मॉडलिंग है. मिररिंग का मतलब होता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, किसी ऐसे मोमेंट में हूँ जहां मैं बहुत खुश हूँ, और आप मुझे देख करके
वो मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो, मिरर इमेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस मोमेंट के लिए यू विल फील रियली एक्सटैटिक, रियली हैप्पी, बट इट वोंट बी देयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सिमिलरली क्ले मॉडलिंग तब होता है जब आप किसी और का, जैसे कोई और इंसान है जिसने कुछ अचीव किया हो और वो अचीव आपको भी करना है, व्हेन यू वांट टू अचीव दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो आप उनको मॉडल करने की कोशिश करो, उसी स्टेज में, उसी फेज में जाने की कोशिश करो। तो दिस इज साइकोलॉजिकल, यू गेट इनटू द सेम इमोशनल स्टेट, बट दैट इज सुपरफिशियल, सिर्फ उसी मोमेंट पे रहेगा, इट वोंट बी इनग्रेव्ड इन यू। तो अगर हमें किसी भी फीलिंग को अंदर तक फील करना होता है, देन वी नीड टू डाइव डीपर। तो थोड़ा सा और डीप में जाने के लिए, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया या जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, लेट्स डू इट इन वन अनदर वे, जिसको हम बोलते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तो हम बचपन से लिखे, और मैं इंग्लिश टीचर हूँ, हर क्लास में बच्चों को लेटर लिखवाती हूँ। सो यहाँ पे एक लेटर लिखना है, यू कैन ईदर टेक द सेम पर्सन, और अगर आपको लगता है ये पर्सन नहीं, यू वांट टू वर्क विद समवन एल्स, लाइक इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी anyone with whom you really want to work on your relationship. And what you have to write, you have to write about all your grievances. आप जो कुछ भी फील कर रहे हो और क्या हुआ जो आपने कभी उस इंसान से कहा ही नहीं, कह ही नहीं पाए। जनरली माँ के साथ ऐसा होता है, वी डू दिस इन वुम हीलिंग की, मम्मी के साथ कुछ ऐसे अनबन हो जाते हैं एंड यू आर नेवर एबल टू शेयर ऑल दीज थिंग्स टू योर मदर। सो जस्ट ट्राई टू राइट इट इन लेटर, टेक 5 minutes। अभी हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग यू, टेक 5 minutes। और जरूरी नहीं है पूरा लेटर फॉर्मेट लिखने का, बस आप मम्मी से क्या कहना चाहते हो, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ मम्मी का, इट कैन बी योर फ्रेंड, योर डॉटर, योर सन, योर एनीवन अराउंड यू, उनको ये लेटर लिखना है। यहाँ तक कि आप भगवान को लेटर लिख सकते हैं कि तुमने मुझे ही क्यों इतना परेशान किया, मुझे ही क्यों नहीं कुछ भी दिया, सबको दे रहे हो। So whatever grievances are there, problems that you are facing right now, just write in a sheet of paper. चलिए आपके साथ मैं भी लेटर लिखती हूँ, so that I will show you how what we have to do with that letter. मुझे लगता है आप सब लोगों ने लिख लिया होगा अभी। अब जिसको आपने ये लेटर लिखा है, जिस भी इंसान को, उसकी तरह से उस इंसान का आपके इस लेटर के लिए क्या जवाब होगा, वो 2 से 3 मिनट में लिख लीजिए, तो हमारा 45 में ये काम पूरा हो जाएगा। सो आपने जिसको भी लेटर लिखा, जो कुछ भी कहा उनको, इसके जवाब में आपको क्या लगता है वो क्या कहेंगे, वो आपको उनका जवाब में देना है। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर मैं अपनी माँ को लेटर लिख रही हूँ और माँ को कहती हूँ कि माँ तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं,
तुम हमेशा वही सिखाती रही जो तुमने सिखाना चाहा, मेरी बात तुमने सुना ही नहीं। तो माँ का जवाब क्या होगा कि बेटा मैं तो वही दिखाऊंगी ना जो मैंने देखा था, मेरी दुनिया वही थी, तो मैं यही चाहती थी कि जो मैंने देखा वो तुमको उस हिसाब से सजग बनाती जाऊं। तो ये आपके हिसाब से जो लेटर होगा। आप एक और थोड़ा विभत्स करके लेटर बनाते हैं, जैसे आपने अगर लिखा है किसी बिजनेस पार्टनर को जिसने आपको ठग लिया, कि आपने ऐसा कैसे किया, आप कैसे हमारा पैसा लेके भाग गए, तो उसका जवाब किस तरीके से हो सकता है? आपका अपना अनुमान हो सकता है कि मेरी भी कुछ जरूरतें थी जो मैं तुमको नहीं बता सका, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, थोड़ी लालच में बह गया। तो जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप मेरी आवाज सुनाई पड़ी क्या? हाँ जी। हाँ जी, आपने जितना भी लिखा काफी है अभी, क्योंकि जस्ट हम उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसे डिफरेंट हो रहा है आपके साथ। अब क्या करना है ना, मैं एक म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, और आपने जहां भी जिस पेज पे लिखा है उसका पीछे का पेज ले लीजिए। जैसे एक पेज में आपने पूरा लेटर लिखा होगा, उसका पीछे का पेज, उसमें क्या करना है आपको, एक सर्कल ऐसा बनाना है। ओके, आई नीड टू स्टॉप माय ब्लड बैकग्राउंड। ओके, सो ये जो आपको पेपर दिख रहा है, यहाँ पे पहले एक सर्कल बनाना है। ओके, और इस सर्कल के चारों ओर आप ऐसे घुमाते जाओगे कंटिन्यूअसली, विदाउट स्टॉपिंग। सो यू हैव टू कीप ऑन मूविंग योर पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग योर हैंड। तो ऐसा हम 3 मिनट तक करेंगे, यानी कि 90 सेकेंड तक। पहला सर्कल जो आपने बनाया, उस सर्कल के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। सो ये पहला सर्कल बना, एंड यू कीप ऑन मूविंग योर फिंगर्स, मूविंग इन दैट डायरेक्शन। So for 3 minutes you will do, and as you are doing that, your attention should be at the center of this circle. तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपको जो पहला सर्कल बना है उसके अंदर नहीं जाना है, और दूसरा आपका पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, और आपका ध्यान सेंटर ऑफ द सर्कल पे हो। So let's do that for 3 minutes. I'm playing a song so that we can do with that. We can't hear any music, huh? Acha, maybe it is not allowed, so it's okay.
It's allowed, No, you can share it. स्टार्ट थोड़ा सा स्टार्ट में आया फिर बंद हो गया. हाँ, वो Zoom filters it out, I guess, for the copyright. Oh. Thank you so much. Now you can close your eyes and just see if you are feeling any state change. आपके भीतर कोई भी change हुआ है? Yes or no, जो भी आपका feeling है, you can write it in the chat box. So after that, I'll be giving you the explanation of what it is and how we have done, what it means. जो भी है, genuine answer आपका yes or no, in your state change, just write. सिर्फ मेघा जी ने जवाब दिया. आपका नो है, जस्ट राइट नो. ओके, ठीक है राजेश जी, थैंक यू. जो भी आपका स्टेट चेंज है, जस्ट राइट इट एज इट इज, यस और नो. थैंक यू सो मच साक्षी. आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज दिया, सो पीपल वोंट सी दैट. इट्स ओके. पिंकी जी, जो भी, यू कैन बी लाइक न्यूट्रल, यस नो, जस्ट राइट इट. क्योंकि ये हमने सैम्पल किया एंड इट वाज नॉट द वे इट शुड बी रियली डन. क्योंकि हम लोग जब ये, दिस इज माय फेवरेट activity which I make the people to do to soothe themselves, to give them calmness, to comfort them जब कोई बहुत ज़्यादा angry हो, depressed हो. So this is a kind of technique which works with everyone. So इसको हम actually graphotherapy का एक technique है जिसमें it not just makes you mindful about what you are doing but also makes you aware about the moment. ठीक है, तो आप जब सर्कल बना रहे हो, so hand is moving, this flexor movement is happening, your attention, focused attention is there at the center, and also you are very much aware that you don't have to lift your hand. तो वो consciousness है. After some time, if you are really depressed, if you are really angry, you'll feel like tearing the paper. ज़्यादा गुस्सा होगा तो अपने आप मुश्किल से आप 30 सेकंड में पेपर आपका फट जाएगा. अगर आप ज़्यादा उदास हैं, थोड़ी देर में आपका हाथ इतना थक जाएगा that you'll feel like what I am doing, that is not making any sense. So that's how it starts working. जब आप धीरे धीरे ये मूवमेंट करते हो, then you are able to come into that state where you are able to be mindful about it. तो ये एक सिंपल सा ग्राफोथेरेपी का एक है. And how it helps, even the letter writing that we have talked about. जैसे आप लोगों में से कोई साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है क्या? मुझे लगता है साक्षी है, पिंकी है. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे रमेश जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहता, आई जस्ट फॉरगिव. But it's not always like that, because that brings much more diseases within. क्योंकि हम अंदर ही अंदर उसको सोच के, या कहीं भी अगर हमने उसको सिर्फ अंदर रख लिया and we are not working on it, somehow we feel more uncomfortable from within. तो जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, या नॉट इवन दूसरों के साथ अपना ही एक लेटर लिख लिया या ऐसा जर्नलिंग किया, that helps us release those sort of emotions which are stuck somewhere within. तो उस स्टकनेस को निकालने के लिए ये लेटर राइटिंग यूज होता है. और आज के डेट में हीलिंग में हम लोग तो इसका पूरा वर्कशॉप लेते हैं. जैसे ये इस एक्टिविटी के ऊपर हमारा 2-3 घंटे का सेशन हो जाता है, सिर्फ यही एक्टिविटी.
कि जितना कुछ है आप आधे घंटे में अपनी मम्मी को लेटर लिखो, फिर ये वुम्ब हीलिंग में एक्चुअली मदर के लिए लेटर यूज होता है, और फिर आप उसका जवाब में मम्मी क्या लिखेगी, एंड देन आफ्टर यू हैव डन ऑल दोस थिंग्स, ये तो ग्राफोथेरेपी मैंने ऐड किया, जस्ट क्लियर द पेपर, ओके। जब आप इस लेटर को फाड़ देते हो, यू आर ऑलरेडी फॉरगिविंग एवरीथिंग विच हैज हैपेंड। अब आपका उससे कोई नाता नहीं है, आपको जो भी लेसन उससे लेना था ले लिया। इफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इनर चाइल्ड हीलिंग, दे ऑल्सो टॉक अबाउट कि हम किसी भी स्टेट में इसलिए बार बार जाते जाते हैं क्योंकि हमने उससे लेसन नहीं लिया होता है। कई लोगों से आप सुनोगे कि मेरे साथ तो हर बार धोखा हो जाता है, हर बार मैं उसी स्टेट में आ जाता हूँ। तो द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट लाइफ इज गिविंग यू that situation again and again because you have not taken the lesson from this। क्योंकि जैसे ही आप इस बात को समझ जाओगे कि अच्छा मुझे ऐसा नहीं, ये स्टेट में काम करना है, इस आदमी के साथ ऐसे बिहेव करना है, फॉर श्योर यू वोंट गेट इनटू दैट अगेन। तो आप वहां जा ही रहे हो बार बार क्योंकि आपने वो लेसन नहीं लिया है। हम बार बार गिर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि चलना कैसे है। तो जैसे ही हमको चलना आ जाएगा, वी वोंट फॉल डाउन। सो दिस थिंग इज अप्लाइड इन एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ। तो एक और एग्जाम्पल इसके लिए मैं दे रही थी, वही ह्यूलन वाला होपोनोपोनो का, where when we were talking about those kind of horrible acts which is done by people, और ह्यूलन और होपोनोपोनो में कहना है कि even we are responsible। अगर वो इंसान कुछ ऐसा कुछ भी गलत कर रहा है, even we are responsible for that। so how we are responsible? तो इसके लिए अगर आप मानते हो, अगर अपना हिंदी स्क्रिप्चर्स और इसके बारे में आपने सुना है, देन यू नो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, आई एम द यूनिवर्स, एंड इफ आई एम द यूनिवर्स, आई बिलोंग टू दैट, then I am the part of it. That person is also part of this. So if we all are part of that one energy, तो जो कुछ भी वो कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी तो रिस्पॉन्सिबल हूँ। So with that theory it works, and we start sending healing and this blessing for each and everyone. अब आप में से कोई कुछ भी इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहता है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट ऑल आई हैव सेड राइट नाउ, क्योंकि वही लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, बट if there is any question, anything that you would like to point out, please I would like to share, since you did that before. So I told like, okay, so you spoke about कितना बुरा क्या हो सकता है. So I like to share my journey. Like there were a time मेरे घर पे notices आ रहे थे, and my husband was into big, huge crores debts, and I knew that person, one of the other person who was putting that hatred and doing something on us and everything, and I was like a vulture and a hawk saving my family. We had to vacate the house. We had to leave. We had to get out of that. Even my children. So, and when I started this forgiveness, I was like, this is not happening. You know, initial stages, I said, nah, this was not happening towards that person, because वो revengeful वाली feeling आ जाती है. You know, हमारे साथ हुआ है, अगर भगवान है देख रहा है तो वो ये क्यों नहीं करेगा टाइम. But the moment that forgiveness turned into a blessing, and looking at that person, I could go claustrophobic. I used to go breathless. I couldn't stand that person. इतना so and so कि उसकी energy भी इतनी सी मेरे सामने आ जाए ना, I used to go like this. Today, what I learned was, after the forgiveness, which immensely and deeply I had to go inside. Like अभी ये एक बार किया इनको नहीं समझ में आया. That's why I said वो switch आने में इतना time लगता है, because for self introspection and self awareness is needed कि मेरी उसमें क्या attachment थी, और अगर मैंने lessons learn नहीं किए तो वो क्या है. So they are a part of it. हमें lesson learn करना है, और जब वो blessings में convert हुआ, God, whatever I must have lost, I gained it back. right. The moment it changed into blessings. And not only that, I get umpteen. And I got to know my own superpowers, my own potential. And it now is the feeling कि वो बाजू में भी आके खड़े हो जाए, I am free. I'm so blessed, and I really thank, and I literally be so graceful. So it is like, और ये हमारा टेस्ट होता है कि दूसरे लोग भी हमारी लाइफ में आएंगे, ऐसे बिहेव करेंगे. अब आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे, बिकॉज आप बोलते हो आप हील्ड हो. Okay, how? Let God will keep testing you. But Right. again, put on your healthy boundaries and how you take it. So true. इसलिए कहा जाता है ना कि भगवान, अगर हम स्क्रिप्चर्स की भी बात करें, भगवान उनको ही टेस्ट करता है ज्यादा जो उसको ले सकता है, और जो जितना देगा उसको और टेस्ट करता है. So it's not why me, we are really lucky that we are getting it so that we can pass this life. इसलिए मैं past life regression की भी बात कर रही थी. That is one of the techniques we use. तो उसमें भी यही है कि
सिर्फ हमारे बचपन की यादों में ही कुछ नहीं बसा हुआ है। जैसे आप खुद की बात माफ करने की बात कर रहे थे राजेश जी, तो माफ करने की बात सिर्फ इस स्टेज में नहीं होता है कि यहाँ कुछ किया नहीं किया, इवन बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है दैट वी डोंट इवन रिमेम्बर। womb healing की बात होती है, when you were in the womb of your mother there also something, some trauma is there. Then even past life में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चीजें, again it's like not everyone believes in that, but because we practice it, we see it, we see the changes. Even मेरे साथ अगर आप बताओ, I have gone through so much of trauma and that has impacted my memory a lot. मैं जो चीज से शुरू करती हूँ, I am not able to recall that point. मतलब at that point, अब उसको, वो क्या गजनी में था ना, short term memory loss. So most of the time I get into that phase. Still I am able to be with all the kind of people. जिन लोगों के साथ पहले मैं एडजस्ट नहीं कर पाती थी, मेरे colleagues हो, कुछ ऐसे relatives थे, those are proper narcissists. So narcissists are those kind of people who really believe what they are doing, how they are doing, that's the only way to do, and everyone else is just stupid, not doing anything in the world. So they are running the world according to them. So उनके साथ रहना एडजस्ट हो, मतलब एडजस्ट करना हो गया है, नॉट जस्ट एडजस्ट करना, दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी. सो दैट्स अ काइंड ऑफ ब्लिसफुल स्टेट फॉर मी. और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जैसे आपने पिंकी जी शेयर की, हम क्योंकि हम उतना कुछ देखते हुए करते हुए आ रहे हैं, देन वी रियली फील एंड सी अ लॉट. So once again, thank you so much. Already we have reached this time, and I'm grateful to you all for Thank giving you. time on this I Sunday would like morning. to add a little bit over here. When we talk about forgiveness, हम लोग बोलते हैं कि आप खुद को एक वॉशिंग मशीन में डालने वाले हो. जब आप जिस तरीके से वो कपड़ा घूमता है, जिस स्पीड से उस रोलर कोस्टर राइड पे आपके इमोशंस अंदर चर्न होंगे अगर आप फॉरगिवनेस के स्टेप पे आगे बढ़ते हो. तो यस, इट इज नॉट इजी, बट जब वो हो जाता है प्रोसेस खत्म, तो कपड़े की तरह साफ अंदर से पूरा मैल निकल जाता है और एक फ्रेश पीस बन के बाहर आता है. तो यस, फॉरगिवनेस इज अ डिफिकल्ट जर्नी, बट यस, वंस टेकन it transforms you. So thank you, Anupam, for sharing your beautiful insights on जी, एक और forgiveness. चीज जो आपने कही, उसी पे एक और बात है. जब हम फॉरगिवनेस और रेजिलियंस की बात करते हैं, तो फॉरगिवनेस को मार्क ट्वेन ने बताया है कि फॉरगिवनेस ऐसा है जब आप किसी के ऊपर चल रहे हो, वो आपके पैरों के नीचे आके दब जाए, उस समय फॉरगिवनेस की दरकार होती है. बट रेजिलियंस तब है जो दबने के बाद भी आप उठ के खड़े हो जाते हो. So Mark Twain has written it in his poem. It's like a violet flower which comes under your heel, and resilience is when you still lift yourself up and start moving, start walking. Yes. So Thank you. beautiful, Anupam. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Anupam, for sharing beautiful insights, techniques. और जब हम आपने प्रैक्टिकली हम लोग को वो टेक्निक्स कराए हैं, शायद अब हमें नहीं पता है, पर जब हम अकेले बैठेंगे रात को, सुबह को, जब वो चीजें हमारे दिमाग में आती है और जब हम ये राउंड सर्कल्स करते हैं ना, वो एक अलग लेवल का रिलीज होता है माइंड से. ये टेक्निक हम बोलते हैं कि बच्चों के साथ भी करो. स्कूल में कुछ हो जाता है, झगड़ा करके आए, चलो सर्कल्स क्रिएट करो, ड्रॉ करने नहीं आता. इट्स अ It वेरी really गुड वे helps ऑफ a lot. रिलीजिंग दैट काइंड I ऑफ take it स्ट्रेस. in most of the sessions. मेरे जो भी सेशन होते हैं, बच्चों की क्लासेस होते हैं, I make them do that whenever they are very much messy, uncomfortable. Yeah, I've seen many of the therapists conducting the same Right. technique again and again every day repeatedly, जब तक आपके दिमाग से वो चीज निकल नहीं जाती है. तो yes, Right. it's a very powerful technique. It is Anyone soothing. else? It is soothing, yes. Any questions, any doubts, any sharings anybody wants to? We are open. Yeah, please, any sharings, anybody has their journey, you want to share something. राजेश जी, आपको मैं कुछ बोलना चाहूंगी. मैंने ना अभी एक 84 ईयर की आंटी ही बोलेंगे, आंटी थी, उनका साउंड हीलिंग का एक सेशन लिया था. ओके. और उनका जो साउंड हीलिंग का सेशन था, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने ऐसे मेरे से कहा, देखो बेटा, मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है ना, मतलब ऐसे उन्होंने बोला. 50 मिनट का साउंड हीलिंग था. साउंड हीलिंग खत्म होने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या फील कर रहे हो आप. उन्होंने कहा, अभी भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ, कुछ तो बदला नहीं. ऐसे कहा, मेरा मुंह खुल रहा है क्या. So you can see the difference. Sometimes it happens कि आप realize नहीं कर रहे हो कि कुछ change हुआ है, but it already takes place. So इसलिए मैं कह रही थी कि आप बोलो ना बोलो, आपका चेहरा बोलेगा. आपके चेहरे में जो changes आए हैं ना, जो हम shades की बात कर रहे थे, wrinkles की बात कर रहे थे, glow की बात कर रहे थे, that will come and you will be able to see that.
और हाँ, अगर ट्रॉमा बहुत ज्यादा डीप है तो ये तो आपके लिए बोलते हैं ना, खौलते पानी में बेअसर, कोई काम नहीं करना। इसलिए मैंने बोला लाइट कोई चीज लीजिए जिसके ऊपर हम ये 2-3 मिनट में काम कर सकते हैं। Yes. Okay, so everyone, with this we come to an end for today's session. Thank you, Anupam, for choosing PosiFest, for being a part of PosiFest, and thank you once again. We all see you tomorrow, 4 p.m. same time. Thank you. Thank you so much. Have a great day, everyone.